Hello students, today is our first lecture. I am Mukesh Kumar in Mechanical Engineering Department at PKG College of Engineering and Technology पानीपत। आज हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। In simple stress and strain, we are discussing the basic terms which is used in mechanics of solids. First of all, we were discussing about strength. What is strength? Strength is the measure the material property to resist the deformation and to maintain its shape. A load. What is load? Load may be defined as the combined effect of external force acting on a body. Load may be point load, distributed load. Point load, what is point load? Point load is a point load is one which is considered to act at a point. जो एक point पे considered होता है उसको हम point load कहते हैं. Basically, when we applied a load at a particular surface at a point which is at a point given area, that is point load. Distributed load. A distributed load is one which is distributed over spreading some manner over the length of the entire beam. That is your distributed load. The other way of classification is that is your tensile load, compressive load, torsional or twisting load. Fourth one is your bending load, and finally shearing load. In this chapter we were discussing about the tensile load, compressive load, torsional load. Bending load and shearing load we were discussing in the next chapter. The load may be point or distributed load as we discussed earlier. Next, what is stress and strain? Stress क्या होता है? Stress होता है the internal resistance which the body offer to meet with the load is called stress, or in other way, stress is your load per unit area. We can denote the stress with sigma. Sigma is equal to F by A. F is your applied load. A is your given cross-sectional area in mm square, or you can take it meters. Sigma is your stress. We can denote the stress in sigma. In the figure, we can see the load is force is applied in both the side. That is it is an object which is uniform manner, and we applied a force with equal both side at the area A. That means a stress is generated when applied a force in this object. Next types of stresses. Types of stresses, that is first one is your tensile stress. Second is your compressive stress. Third is your shear stress, tensile stress. If we applied the load on an object which is in a uniform manner, we applied load on both the ends. If we applied loads on both the ends, the object is stressed. ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, मींस टेंसाइल स्ट्रेस उसमें जनरेट हो जाएगी। जैसा कि हम फिगर फर्स्ट में देख रहे हैं, यदि हम इस ऑब्जेक्ट पे लोड अप्लाई करते हैं, दोनों साइड में इक्वली लोड अप्लाई करते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेस हमारी जनरेट हो जाएगी। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे हम इस पे दोनों साइड पे लोड लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये इसकी डायमेंशन में चेंज आ जाएगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा। दैट इज योर टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में इसका अपोजिट होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों साइड से इक्वली फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके डायमेंशन में चेंज आता है। कैसे चेंज आता है? जब हम इक्वली फोर्स अप्लाई करते हैं इस ऑब्जेक्ट पे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट मीन्स वी अप्लाई द कंप्रेसिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड, इसमें इस तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो जाती है। और शियर स्ट्रेस, थर्ड वन इज योर नेक्स्ट थर्ड शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में क्या होता है? शियर स्ट्रेस में हम डायगोनली लोड इस पे अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब हम डायगोनली लोड अप्लाई करते हैं तो ये टिल्ट करता है, तो एट एन एंगल 5 डिग्री। तो जब ये टिल्ट करता है तो वो जो के अंदर
स्ट्रेस जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट वन इज योर, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल के साथ स्ट्रेस को और स्ट्रेन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल है, ए मेटल वायर इज 2.5 mm डायमीटर। एक मेटल वायर है जिसका डायमीटर 2.5 mm है, 2 मीटर वो लॉन्ग है। ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड टू इट and its stretch 0.3 mm. Assume that material is elastic. Determine the following. First one is your the stress in the wire and the strain in the wire. एक वायर है जो कि 2.5 mm की हमारी डायमीटर की है, 2 मीटर लॉन्ग है। यदि हम उस पर 12 न्यूटन लोड अप्लाई करते हैं तो वो 0.3 mm स्ट्रेच हो जाती है, उसमें खिंचाव आ जाता है। तो उस खिंचाव आने से हमें इसमें स्ट्रेस, उसमें कितनी स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी, कितना स्ट्रेन हो जाएगा, वो हमें इसमें फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए, स्ट्रेस को निकालने के लिए हम जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया होता है। लोड का हमें पता है कितना, हमें हमें फोर्स गिवन है 12 न्यूटन है। और हमें सबसे पहले एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे हमें पता है, यदि हम किसी वायर का एरिया निकालेंगे तो हमें पता है इसका फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वेयर बाई 4 होता है। यहाँ पे पाई कॉन्स्टेंट टर्म है, 4 कॉन्स्टेंट टर्म है। डी का हमें पता है डायमीटर है हमारा 2.5 mm, इसका स्क्वेयर कर देंगे। यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं एरिया को तो ये हमारा आ जाता है 4.909 mm स्क्वेयर। तो जब हमें एरिया का पता चल गया तो हमें स्ट्रेस के फॉर्मूले का पता है, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है। एफ की हमारी वैल्यू गिवन है 12 न्यूटन, हम पुट कर देंगे इसमें 12 न्यूटन एफ की प्लेस पे, और बाई एरिया हमें अभी जस्ट निकालना है, दैट इज 4.99। व्हेन वी कैलकुलेट दिस वी कैन फाइंड 2.44 न्यूटन पर mm। फिर हम स्ट्रेस निकलती है इसमें, दैट इज योर सिग्मा इज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस कितनी आ गई हमारी 2.44 न्यूटन पर mm स्क्वेयर, और इसको हम मेगा पास्कल में भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेन कैसे निकालनी है। स्ट्रेन का हमें पता है, स्ट्रेन को अभी हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। चेंज इन लेंथ और पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इसका फॉर्मूला होता है, दैट इज एक्स बाई एल। यदि हम किसी मटेरियल को, किसी ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ से फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेस जनरेट होती है, जो उसमें स्ट्रेन जनरेट होती है, जो उसका साइज इंक्रीज होता है तो वो उसमें उसकी स्ट्रेन होती है, दैट इज योर। इस न्यूमेरिकल के से हम ले तो जब हमने इस पर लोड अप्लाई किया तो इसमें 0.3 mm स्ट्रेच हुआ, 0.3 mm स्ट्रेच हुआ हमारा। अब हम जानते हैं कि इसका स्ट्रेन का फार्मूला होता है एक्स बाई एल, मतलब कि चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ कितना हुआ हमारा 0.3 mm, दैट इज योर 0.3 mm। और इसमें ओरिजिनल लेंथ हमें पता है 2 मीटर लॉन्ग है, मीटर को हम इसमें mm में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज योर 2000 mm हो जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेन आ जाएगा हमारा 0.0015। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ ए मटेरियल टू द ओरिजिनल लेंथ, टू द ओरिजिनल लेंथ, और यू कैन डिफाइन इन अदर वे चेंज इन लेंथ और बाई ओरिजिनल लेंथ। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे दोनों साइड पे, किसी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट पे दोनों साइड से लोड अप्लाई करते हैं तो जब लोड अप्लाई करेंगे तो वो कुछ इलोंगेट हो जाएगा, जितना वो इलोंगेट हो जाएगा बाई ओरिजिनल लेंथ, that is called strain। strain that is your, it is defined as the elongation to the original length। यदि हम इस फिगर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें जो हमारा इलोंगेशन हुआ है दैट इज योर स्मॉल इलोंगेशन, दैट इज dl, और जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है दैट इज योर l। तो इट मीन स्ट्रेन क्या हुआ हमारा, स्ट्रेन इज इक्वल टू dl बाई l, dl बाई l। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या आ जाएगा, जैसे कि हमने स्ट्रेस में पढ़ा था, हम जब किसी ऑब्जेक्ट पे दोनों साइड पे हम लोड अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके डायमेंशन में चेंज आ जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है। जब वो कंप्रेस हो जाता है तो उसकी डायमेंशन में चेंज आता है।
तो कंप्रेसिव स्ट्रेस उसमें जनरेट हो जाती है। इट मीन्स वो डिक्रीज हो, उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो दैट इज इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेन। नेक्स्ट वन इज योर थर्ड, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन में क्या है, जब हम इसके डायगोनली लोड अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल शियर हो जाता है एट एन एंगल फाई। जब उस एंगल स्मॉल एंगल, फाई इज योर स्मॉल एंगल, फाई को हम जब मेजर करते हैं दैट इज योर शियर स्ट्रेन, दैट इज योर शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो हम जो हमने पढ़ा है अलग अलग मटेरियल के ऊपर यदि हम लोड अप्लाई करेंगे तो वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, अलग अलग बिहेवियर शो करेगा। तो हम एक जर्नली हम पढ़ते हैं, यदि हम किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल पे लोड अप्लाई करते हैं तो वो किस किस लोड पे क्या क्या बिहेवियर शो करता है, वो हम इसको डिस्कस करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। इन स्टार्टिंग यदि हम लोड अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल के ऊपर तो स्टार्टिंग में वो अपना इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। धीरे धीरे हम उस पर लोड अप्लाई इंक्रीज करते चले जाएंगे। एट पॉइंट ए पोजीशन पे क्या होगा कि वो ए पोजीशन तक वो अपना इलास्टिक बिहेवियर दिखाता रहेगा। मतलब क्या हुआ इसका इलास्टिक बिहेवियर का, मतलब कि जब मैं ए पॉइंट तक उस पर लोड अप्लाई करता रहूंगा, यदि मैं ए पॉइंट पे जाके लोड को हटा देता हूँ तो दोबारा से मटेरियल अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको रिगेन कर लेगा, तो दोबारा से रिगेन कर लेगा। दैट इज इट्स इलास्टिक बिहेवियर। यदि मैं उस पर और ज़्यादा लोड अप्लाई कर दूँ, एक पॉइंट से बियॉन्ड अप्लाई कर दूँ लोड को, फोर्स को और अप्लाई कर दूँ, तो वो और अप्लाई करने से पॉइंट बी पे हम पहुंच जाएंगे। पॉइंट बी पे क्या है, दैट इज इट्स इलास्टिक लिमिट। बी बी तक वो अपनी शेप को दोबारा से रिगेन कर सकता है। यदि बी से मैं थोड़ा सा भी लोड और लगा दूं तो वो दोबारा से अपनी इलास्टिक बिहेवियर को छोड़ के प्लास्टिक बिहेवियर में शिफ्ट हो जाएगा। बट एट दैट पॉइंट बी यदि मैं यहीं से अपना लोड हटा देता हूँ या डिक्रीज कर देता हूँ तो वो अपना दोबारा से ओरिजिनल लेंथ में वापस आने का कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, और लोड उस पर अप्लाई करेंगे उसके बिहेवियर को चेक करने के लिए। तो मैंने बी पॉइंट से आगे उस पर लोड अप्लाई किया, तो जब मैं लोड अप्लाई करता हूँ उस मटेरियल पे तो वो पहुंच जाएगा एट पॉइंट सी। सी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सी पे कौन सा शो कर रहा है, सी पे ये दिखा रहा है कि अपना प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर का क्या मतलब हुआ, प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब है कि जब मैंने इस पे और लोड अप्लाई किया तो यहाँ से ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करेगा। ये यहाँ पे जितना हमने लोड अप्लाई कर लिया, जितना इसमें चेंजिंग आ गया मटेरियल में, वो अब दोबारा से उसमें ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा। अब ये इसी प्लास्टिक बिहेवियर को शो करेगा। मतलब क्या हुआ कि वो अपनी डायमेंशन में, जिस डायमेंशन में आ चुका है अब वो सेम डायमेंशन में रहेगा। अब यहाँ से नीचे से हम देख सकते हैं ये हमारा परमानेंट सेटअप हो गया। इट मीन्स ये प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब है जितना अब इस पॉइंट तक हमने इतना लोड अप्लाई कर दिया, ये अब इसमें ये परमानेंट चेंज आ चुका है। अब ये दोबारा से अपनी अपनी ओरिजिनल शेप को नहीं ले पाएगा। यदि मैं फर्दर और लोड इंक्रीज करता हूँ तो क्या होगा, यदि मैं और लोड इंक्रीज करता हूँ, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ये डी पॉइंट तक, यहाँ तक डीप तक पहुंच जाएगा। इसको क्या बोलते हैं डी पॉइंट को, दैट इज इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट। ये इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट है। यदि मैं डी से भी और ज़्यादा लोड अप्लाई करता हूँ तो देन व्हाट हैपन, डी के बाद इसका आता है फाइनली ई। ई पे क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट। ई पे क्या हो जाएगा, यदि मैं इस पे और लोड अप्लाई करूंगा तो ये टूट जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट तक। ई तक बियॉन्ड पॉइंट ई ये अपनी प्लास्टिक बिहेवियर को प्रोपोर्शनल लिमिट तक दिखाता रहेगा। डी पे ये प्रोपोर्शनल लिमिट को दिखाता है। डी के बाद यदि मैं इस पे और ज़्यादा लोड अप्लाई करता हूँ, और लोड अप्लाई करने से ये टूट जाएगा। ये मटेरियल की इतनी ही कैपेसिटी है सहन करने की, यू कैन से एंड्योरेंस पावर। दोबारा से मैं आपको कर्व को एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दैट इज अवर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, हमारा एक मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर इन स्टार्टिंग वी अप्लाइड लोड, इट शोज इट्स इलास्टिक बिहेवियर एट दैट पॉइंट ए पॉइंट तक ये अपना इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है। मैं आप लोड अप्लाई करता हूँ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहते हैं पॉइंट ए तक। मतलब ए से मैं अपना
लोड हटा लेता हूँ तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। एट पॉइंट ओवरलोड, फर्दर मैं ओवरलोड अप्लाई करता हूँ तो पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। दैट इज योर इलास्टिक लिमिट, और यू कैन से इन अदर वर्ड यील्ड पॉइंट, इसको हम यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। तो बी तक भी ये अपना बी से जस्ट पहले यदि मैं लोड हटा लेता हूँ, फोर्स हटा लेता हूँ, तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन आ जाता है। बट यदि मैं बी के बाद ओवरलोड अप्लाई करता हूँ तो ये इसका सी पॉइंट तक पहुंच जाता है। सी पॉइंट पे क्या है, ये परमानेंट सेटअप दिखाता है, आप देख भी पा रहे हो स्क्रीन पे। दैट इज प्लास्टिक बिहेवियर। यदि मैं इस पे फर्दर लोड अप्लाई करता चला जाता हूँ तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट को हमने एस यू से डिनोट किया हुआ है इन वाई एक्सिस, प्रोपोर्शनल लिमिट को। यदि हम डी के बाद भी ओवरलोड अप्लाई करते चले जाते हैं तो पॉइंट ई आ जाता है। पॉइंट ई इज इट्स फाइनल पॉइंट, और दैट इज इट्स फ्रैक्चर पॉइंट। इस पे ओवरलोड ये सहन नहीं कर पाएगा, इसके बाद इसमें फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा। ओके, दैट इज योर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट है, यदि हम जो हमारे मटेरियल है, जो हमारे ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, उनकी करेक्टरिस्टिक अलग अलग होती हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल, दैट इज फर्स्ट वन इज योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है मेजर ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टी टू रजिस्ट फॉर्मेशन एंड टू मेंटेन इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ क्या हुआ कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी मटेरियल पे लोड अप्लाई करते हैं तो वो अपने आप को उसी शेप में रखने के लिए रजिस्ट करता है, लोड अप्लाई करता है, वो अपनी स्ट्रेंथ शो करता है। दैट इज योर स्ट्रेंथ। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस नेक्स्ट योर मेजर ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टी टू रजिस्ट इंडेंटेशन और अब्रेशन एंड वियर। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स ऑब्जेक्ट शोज, यदि आप उस पर लोड अप्लाई करते हो तो उस पर कितना इंडेंट हुआ, कितना उस पर निशान हुआ, और कितना उसमें वियर टीयर हुआ। दैट इज द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी इज मेजर ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफॉर्म बिफोर फेलियर, और इन अदर वर्ड डक्टिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको हम तार की फॉर्म में हम ड्रॉ कर सकते हैं, पुल्ड आउट कर सकते हैं, पाइप की फॉर्म में हम उसको बना सकते हैं। डक्टाइल मटेरियल कैन बी पुल्ड और ड्रॉन इनटू पाइप्स, वायर एंड अदर स्ट्रक्चरल शेप। इस भी शेप में, जब टाइल मटेरियल को हम अपनी रिक्वायर्ड शेप में हम उसको बना सकते हैं, मीन्स हम उसको वायर की शेप में बना सकते हैं, पाइप की शेप में बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ डक्टाइल मटेरियल आज लो कार्बन स्टील, हम एल्यूमिनियम, कॉपर को, ब्रास को, ये मटेरियल है, इनको हम अपनी रिक्वायर्ड शेप के अकॉर्डिंग हम इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटलनेस इज मेजर ऑफ द मटेरियल इनएबिलिटी टू डिफॉर्म बिफोर फेलियर। ये होता है डक्टाइल के अपोजिट होता है। जैसे इसके हम उदाहरण ले, एग्जांपल ले, दैट इज ग्लास, हाई कार्बन स्टील और सिरामिक। यदि हम ग्लास पे लोड अप्लाई करेंगे तो ये अपना जो बिहेवियर है ये नहीं छोड़ेगा, तो हम वायर की फॉर्म में जनरेट नहीं कर सकते। हाई कार्बन स्टील पे भी हम यदि लोड अप्लाई करेंगे तो इसको हम वायर की फॉर्म में नहीं जनरेट कर सकते। नेक्स्ट है टफनेस। टफनेस मेजर ऑफ द मटेरियल एबिलिटी टू अब्जॉर्ब एनर्जी। टफनेस का मतलब क्या हुआ कि कोई मटेरियल कितनी एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है, कितना वो उसका सहन कर सकता है। दैट इज इट्स टफनेस ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट है पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइसन रेशियो होता क्या? A ratio of the lateral strain to linear strain is known as the Poisson ratio. So we can define its, we can denote Poisson ratio by mu, Greek letter mu. Mu is your equal to lateral strain or transverse strain to the linear or primary strain. नेक्स्ट है आपका हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज directly proportional to strain within the elastic limit. इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब हुआ? जब हम किसी पर्टिकुलर चीज पे लोड अप्लाई करते हैं उसके एक इलास्टिक पॉइंट तक ही उस पर लोड अप्लाई करते हैं, अदरवाइज वो अपना
प्लास्टिक बिहेवियर में चेंज कर जाएगा। According to Hooke's law, when a material is loaded within elastic limit, the stress used in the material is directly proportional to the strain produced. It means that the ratio of the stress with the corresponding strain gives us a constant within elastic limit. The constant is known as modulus of elasticity or modulus of rigidity. So स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब हम पढ़ते हैं यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और प्लास्टिक मॉडुलस। ये क्या होते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट that is denoted by E. It represents the elastic property of a material. The unit of Young modulus, that is Newton per meter square, or we can also say it Newton per mm square. The unit of Young modulus is same as that of unit of stress. Stress की भी जो यूनिट होती है सेम होती है, that is Newton per meter square. स्ट्रेस क्या होता है हमारा? सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए। लोड को हम न्यूटन में, एरिया को हम मीटर स्क्वायर में, तो सिग्मा को हम डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से। स्ट्रेस क्या होता है हमारा? लोड पर यूनिट एरिया, मींस सिग्मा इज दैट इज योर स्ट्रेस। ई क्या है हमारा? स्ट्रेन। तो ई क्या है हमारा? प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस। दैट इज अवर फर्स्ट चैप्टर बेसिक। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, जो जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं द सब्जेक्टिव पॉइंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट वन, वी कैन व्हाट इज स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन देयर टाइप्स, व्हाट इज स्ट्रेन, एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। दिस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पहले प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। क्वेश्चन रेशो, यदि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स को डिटेल में जानना चाहते हो तो क्वेश्चन रेशो को आपको पता होना चाहिए, हुक्स लॉ को आपको पता होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।